चलो बच्चों, so now we are starting with consolidated financial statements, right? So I hope you all must have written the basic part of consolidated financial statement. These are the points mainly which we are going to discuss. What do we mean by this holding company accounts? Consolidated financial statement is also known as holding company final accounts, right? Why we need to do consolidation? Okay, consolidation का simple meaning है bringing the things together, that is consolidation, right? Simple meaning है. Why we need to do consolidation? In this particular chapter and this concept, we are going to see some terminologies like cost of control, minority interest, as you can see on the board. You have intergroup transactions to be eliminated, revaluation of assets to be done, so on so forth. That we will see one by one, step by step. बहुत सिंपल कंसेप्ट है लेकिन डेफिनेटली कंसेप्चुअल है. सो those students who do not understand the concept, no, they find it very difficult that how to calculate it and all. And some professors have made this very complicated, right? जो वर्किंग है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है. यहाँ पे मैं जो मेथोडोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ, that becomes very simple for the student, very straightforward thing. The working is in a statement form, so anyone can understand and arrive at the figures. वो हम देखने जाएंगे. पूरे के पूरे चैप्टर में एक या दो ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है जो हमने अगर बरोबर समझ लिया, उसे बरोबर पकड़ लिया, तो आप ये चैप्टर में मास्टर हो जाओगे, राइट? So we are going to do lot many questions, we are going to solve here for practice purpose, तो कोई इश्यू नहीं आएगा. Second thing, the same chapter is also there in CA final. डेफिनेटली सीए फाइनल का इंटेंसिटी हायर होगा, बट सेम चैप्टर फाइनल में भी है. ओके, तो ये चैप्टर आपको ठीक से पढ़ना ही चाहिए बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो. ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन हम टैकल करते हैं, दैट व्हाट डू वी मीन बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय होल्डिंग कंपनी, एंड उसका सेकंड वर्ड एसोसिएट आएगा सब्सिडियरी कंपनी. इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, राइट? नाउ डू नॉट राइट एनीथिंग टिल द टाइम आई टेल यू टू राइट डाउन. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ डिटेलिंग मैंने लिखा हुआ है, दैट पार्ट आई एम गोइंग ऑन. ओके, जस्ट अ मिनट. Sure. Now let us try to understand with the example. There is one company called as H Limited. ठीक है, एक कंपनी है H Limited. H Limited, and another company is there which is S Limited. मैंने H Limited इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं H Limited को अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी बनाने वाला हूं, एंड S Limited है उसको मैं सब्सिडियरी कंपनी बनाने वाला हूं, राइट? लेट अस सी. नाउ H Limited acquires greater than 50% stake in shares of S Limited. If H Limited acquires, H Limited ने S Limited का शेयर्स एक्वायर किया, कितना शेयर्स? जितना भी उसका टोटल शेयर्स है उसका 50% से ज्यादा शेयर अगर एक्वायर किया, then H Limited will have controlling interest on the working of S Limited. H Limited will be called as a holding company and S Limited will be called as a subsidiary company. The first way
how the company becomes a holding company by acquiring 50% or more shares of another company. This is one of the way how a holding company can become a holding company. Second, if H Limited controls the board of directors of S Limited, तो भी H Limited will be called as a holding company. I repeat, if H Limited controls the board of directors of S Limited, सामने वाले कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं अगर कंट्रोल कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? कर सकता हूं, अगर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम डायरेक्टर्स मेरे कंपनी के डायरेक्टर हैं, दैट मींस इनडायरेक्टली वहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेरी ही मर्जी से लिया जाएगा. I will be controlling the decisions what are taking place in the board meeting of that company. Think about it. Even in that case, I will be called as the holding company and another company will be called as a subsidiary company. So H Limited holding हो जाएगा and S Limited subsidiary हो जाएगा. So I told you two ways by which a company can become a holding company and the other company can become a subsidiary company. Number one, if I acquire more than majority shares, 50% से ज्यादा शेयर मैं acquire कर लूं, मैं holding company हो गया. If I have control on board of directors of other company, मैं holding company हो गया. So both the ways I can become a holding company, right? अगर मैं shares के वे से holding company बनता हूं, तो I have to calculate in every question I will have to calculate percentage holding, कि मेरा होल्डिंग कितना है ये परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. परसेंटेज होल्डिंग, सो परसेंटेज होल्डिंग कैसे करेंगे? टोटल शेयर्स ऑफ दैट कंपनी में से मेरे पास में कितना शेयर्स एक्वायर्ड है उसका प्रोपोर्शन इन परसेंटेज टर्म. सो ये फॉर्मूला से कर सकते हैं. टोटल शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में शेयर्स हेल्ड बाय मी इन एस लिमिटेड मल्टीप्लाई बाय 100. एग्जाम्पल समझ लो एस लिमिटेड का शेयर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एस लिमिटेड का शेयर समझ लो 5000 है, एग्जाम्पल है बच्चों, 5000 है, राइट. और उसमें से 3000 शेयर्स मेरे पास में है. इफ आई हैव 3000 शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड, टोटल शेयर्स इन एस लिमिटेड 5000, उसमें से 3000 शेयर मेरे पास में है, तो इसका परसेंटेज होल्डिंग कितना होगा? 60% होगा, which is greater than 50% and therefore I am the holding company. बच्चों ध्यान से देखो, right? So this concept I explained you that when a company can become a holding company and other company can become a subsidiary company. मैंने इतना ही समझाया है आपको, right? Please write down this, guys. Please write down this. इतना आप कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. Please write down, everybody. चलो जैसे ही हो जाता है लिख के प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई थिंक डन है. ओके डन 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 डन, गेटिंग द मैसेज. ओके ओके ओके, चलो फाइन, ठीक है.
ठीक है. Now a question arises that why a company will acquire more than 50% shares in any of the companies. अगर आपको मालूम होगा तो, आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर आपको मालूम होगा तो Reliance Industries has acquired around 41% stake in Just Dial company, if at all you are aware with. जी हाँ, जस्ट डायल कंपनी जो है, आपने देखा होगा कई बार अमिताभ बच्चन उसका ब्रांड एम्बेसडर था जस्ट डायल का, या बोमन ईरानी उसका ब्रांड एम्बेसडर था. हम जो कॉलिंग करते हैं, कुछ भी डेटा चाहिए मुझे तो मैं कॉल करता हूँ जस्ट डायल, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर दिस इज, निखिल कॉमर्स क्लासेस कहाँ पे है, ओके जस्ट डायल, मुझे प्लम्बर चाहिए मेरे घर के आसपास में कहाँ पे है, तो दैट यूज टू गिव मी द नंबर एंड ऑल. ये जस्ट डायल कंपनी में 41% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा है. एंड इट मे ऑल्सो हैपन दैट उसके पास में ऑलरेडी कुछ स्टेक पड़ा हुआ होगा, से फॉर एग्जाम्पल, बाय दैट रिलायंस इंडस्ट्री बिकम्स द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर. तो जस्ट डायल कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कौन कंट्रोल करेगा? रिलायंस इंडस्ट्री करेगा इनडायरेक्टली. तो व्हाई majority stake is being acquired in the subsidiary company? So let us try to understand, don't write, just pay attention. और आगे जा रहे हैं हम लोग. Just a minute. Why like this? एक मिनट ना बच्चों. Why acquiring the stake in another company? Right? पहले समझ लो. Do not write. Pay attention. Why we need to acquire stake in another company? मैंने देखो दो वे से एरो बनाया है, मैंने लाइन बनाया है, राइट? वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल. ठीक है. देयर कैन बी वर्टिकल इंटीग्रेशन, देयर कैन बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. ध्यान से समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. थोड़ा थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई करना. हाँ, वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? अगर मैं, होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरिंग से रॉ मटेरियल, ध्यान से समझना, and if it is acquiring another company's majority stake which is manufacturing the final product. जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो मैं यान बनाता हूँ. यान का मतलब धागा, जो शॉर्ट वगैरह में लगता है ना, धागा. समझो मैं बनाता हूँ धागा. दूसरा एक कंपनी है, वो कपड़े में से, मतलब कपड़ा बनाता है और कपड़े में से वो स्टिच करके फिनिश्ड प्रोडक्ट, शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स वगैरह बेचता है. So if I am acquiring that company which is manufacturing cloth, we call it as vertical forward integration, upward integration. क्योंकि मैं नीचे लेवल पे हूं और मैं ऊपर लेवल का कंपनी एक्वायर कर रहा हूं. वर्टिकल है एंड आई एम गोइंग अपवर्ड. इसे हम कहते हैं अपवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. इसका उल्टा भी हो सकता है. मैं जो होल्डिंग कंपनी हूं, मैं क्लॉथ बनाता हूं और मैंने ये सोचा कि यार ये क्लॉथ बनाने के लिए मेरे को यान परचेस करना पड़ता है. यान का मतलब धागा. मुझे यान परचेस करना पड़ता है और यान मैं परचेस करता हूं दूसरी कंपनी के पास से, तो वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह चार्ज करेगा, तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा. व्हाई नॉट टू एक्वायर दैट कंपनी? तो मैं टॉप लेवल पे हूं और मैं रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं. दिस इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि another company which is selling the product to me or I am selling the product to another company, that difference of the cost and selling price, that different profit margin will be eliminated. मेरा ultimate cost will get reduced and I will be able to sell the product at even cheaper rates. That will be possible with vertical integration, right? So इसलिए होल्डिंग कंपनी स्टेक एक्वायर करता है. ये कंसेप्चुअल पार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई अ कंपनी विल एक्वायर स्टेक इन अनदर कंपनी. वर्टिकल इंटीग्रेशन. जैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है वैसे ही हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है. सर अब इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं भी जो प्रोडक्ट बनाता हूं दूसरी कंपनी भी यही प्रोडक्ट बनाता है.
सेम प्रोडक्ट, बट आई डू नॉट वांट टू क्रिएट कंपटीशन इन द मार्केट, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये कंपनी को एक्वायर कर लेता हूं, सेम लेवल पे है, सेम लेवल, इसलिए इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सेम लेवल पे मैं मेरे बाजू वाली कंपनी को एक्वायर कर लेता हूं, so that I can lead in the market, I can dictate the market, and that's how I can increase my sales, benefit of cost of large scale of production, what everything I can get, and I can increase my profits. इसे हम कहते हैं horizontal integration. Yes. And for this purpose, a company may acquire stake of another company, so that वो कंपनी और मैं कंपनी, मेरे पास में उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया, वो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो अल्टीमेटली मेजोरिटी तो मेरे ही पास में आएगा, एज सिंपल एज दैट, दैट इज पॉसिबल, राइट? So that is how we have both kind of integration, vertical integration and horizontal integration. Now you can just write down what I have drawn. A couple of students, I think one or two students have raised a hand. हाँ साहिल, एक मिनट रुक जाओ. What you have written is, sir, but vertical upward integration only possible if the big company is not that good or earning more and small company acquires. Sahil, that there can be any permutation combination, that we are not going into that ये big company है, ये small company है. If a company making raw material, acquiring the company, making final product, it is called as upward vertical integration. कुछ भी हो सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि बाहर के वर्ल्ड में क्या हो रहा है. इफ एट ऑल यू आर अवेयर, जोमेटो का पब्लिक इशू आया. जोमेटो क्या काम करता है? डिलीवरी सर्विस करता है. कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. यू कांट इवन इमेजिन ऑल्सो. सो ऐसा मत सोचो कि जो रॉ मटेरियल बनाता है वो छोटा कंपनी है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है वो बड़ा कंपनी है. कोई लेना देना नहीं है इससे. इट ऑल मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच बिजनेस यू आर डूइंग, एज सिंपल एज दैट. Nikhil is asking, if a company buys another company's stake, which is altogether from different industry, then it will be horizontal integration. Yeah, that is horizontal integration. Correct. We cannot call it as exactly vertical integration, as horizontal integration. Right? So this is for your understanding. See guys, ये क्या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, what do you mean by horizontal integration? This for your understanding, that why a company will acquire stake in another company. Because of this integration, you want to acquire. See, why a company would like to purchase another company, because that company is doing something which I am interested in. बहुत सिंपल है. Either वो मेरा रॉ मटेरियल बना रहा है या मेरा फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है. बहुत सिंपल है. बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए देयर आर सो मेनी कंपनीज. अदरवाइज मैं मेजॉरिटी स्टेक क्यों खरीदूं? मेरे बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, इसलिए मैं खरीदूंगा. I hope you are understanding this. Yeah. हाँ साहिल बोलो. साहिल सबसे पहले. साहिल has raised a hand. Sahil, tell Sir, me. what is the difference between amalgamation and consolidation then? You will come Amalgamation to know. is, You will come yes. to know, साहिल. ये चैप्टर अभी तुमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो जैसे जैसे चैप्टर का थियरी खत्म होगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा. अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, बाकी का चैप्टर तो बाकी है पढ़ने का, तुम क्या समझोगे? सो हैव पेशेंस. जैसे थियरी आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा. राइट? Yes, sir, for sure. हेतवी, हेतवी बोलो. सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग कि वो जो वोडाफोन और आइडिया, वो लोग जो मर्ज हुए तो वो मर्जर है Horizontal. कि हॉरिजॉन्टल. वो ओके, तो वो मर्जर नहीं है ना, वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है. Yeah, नहीं, as such, see, as such they have got merged into VI company as such, right? लेकिन उसे हम कहेंगे horizontal because both are doing the same business, as simple as that. So they have Okay, thought sir. that let us take benefit of each other's resources and capture the market, because Jio वहां पे एक बहुत बड़ा प्लेयर है. ओके. और दूसरे अभी जो जूनियर प्लेयर थे वो छोटे छोटे हो गए, क्योंकि जियो का इतना बड़ा टर्नओवर हो गया. तो वो लोग ने सोचा कि हम साथ में मिलेंगे तभी जियो को compete कर पाएंगे, which is happening at this point of time. So अभी ओवरऑल आप देखोगे तो there are 3 players only. एक एयरटेल है, एक VI है और एक जियो है कि नहीं? So but it is horizontal, it is called as horizontal.
Okay, sir. Thank you. Yeah. Chalo, anyone else, any other doubt connected to this? See, restrict yourself to the concept which we are discussing. आप और कहीं पे चले जाएंगे तो चैप्टर जो आपको समझना है वो नहीं समझ पाएंगे. हाँ, आप मेरे पास से आंसर जरूर ले पाएंगे, लेकिन आपको समझना फिलहाल क्या है, चैप्टर समझना है, होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट समझना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना है. चलो चलो, ठीक है. आई होप डन. सो अब हम समझ गए कि भाई ये एक्वायर क्यों करता है, किसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं, किसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, वो मैं समझ गया. तो सर, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है और वो हमें क्यों बनाना है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर, राइट. सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें पता है क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस द रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस शीट. मैं लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, अभी मैं प्रोप्राइटर पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं. योर रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. अब वर्ड आ गया कंसोलिडेटेड. कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कंबाइंड, केप्ट टुगेदर. तो सर किसका कंबाइन किया हमने, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. जी हाँ, ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया. क्यों कंबाइन किया, क्योंकि नाउ सब्सिडियरी कंपनी में मेरा मेजॉरिटी स्टेक है. तो माय स्टेटमेंट शुड आल्सो डिस्क्लोज that how much net worth I have acquired from subsidiary company. Slowly I am using the terms which we have to study in this chapter. तो मैं धीरे धीरे वो टर्म्स भी कवर अप कर रहा हूं. I repeat, consolidation, I will have to do consolidation of the subsidiary company balance sheet. Yes, why? Because I have acquired majority stake in that company, so I will have to show into my financial statement that how much net worth I have acquired, and I will have to disclose to my shareholder. Whenever I say my shareholder, मतलब holding company समझने का, I would have to disclose to my shareholder, holding company's shareholder, that after purchasing the net worth, what is the position of my company's financial statement. ये मुझे disclose करना पड़ेगा. And hence we do the consolidation. Consolidation माने combining both the balance sheets. So next point में मैंने लिखा हुआ है, just a minute. Why we need to study holding company and holding company final account, why we need to consolidate. H limited माने holding company. Holding company will have to prepare two set of accounts, two set of financial statements. Yes, and holding company का ये responsibility है that holding company will have to give to the shareholders two sets. Number one, एक उसका खुद का इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली एच लिमिटेड, एंड दूसरा कंसोलिडेटेड कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी देना पड़ेगा. चलो बच्चों, आई थिंक डन टिल हियर. यहां तक आपका लिख के हो गया है. यू कैन गो अहेड. So now I am trying to explain you that how do we solve the question and how do we prepare consolidated financial statement. तो इसमें अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो I had written some terminologies, cost of control, minority interest, etc. So let us try to understand these things and what is the logic of calculation of these terms that we are going to see, right? अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बनाया है बच्चों. Please prepare this balance sheet. बच्चों, start preparing this balance sheet. Now I am going to explain you cost of control point. Please prepare this balance sheet. ये balance sheet बना लो.
चलो बच्चों, आई थिंक डन है. या immediately below this also prepare this balance sheet. This is for the next year. Okay, also prepare this balance sheet. अच्छा, पहला बैलेंस शीट बनाया है ना बच्चों, उसमें नीचे एक ये सेंटेंस लिख लो. Please write down this sentence. H Limited purchased 75 shares in S Limited on 31st March 17. Write down. अब ये सेकंड बैलेंस शीट बनाएंगे. चलो, प्लीज राइट डाउन. Please prepare the second balance sheet. This is the next year's balance sheet, as you can read. Second year's balance sheet. Start preparing this. And also write the line below. H Limited purchased 75 shares in S Limited on 31st March 17. चलो बच्चों, आई थिंक डन है. यस, ओके. या it is 75. Yeah, it is 75, not 75%, 75. चलो, पता चलेगा. Don't worry about it. You will come to know, right? Let us go ahead. You will come to know everything. ठीक है, लिख लिया. अब मैं सबसे पहले, अभी आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे. You will not write anything till the time I tell you to write. Okay? पहले समझ लो. I will definitely give you sufficient time for writing important stuff. So don't worry about it. अब मैं पहली बैलेंस शीट पे आ गया. ध्यान से समझना बच्चों, अभी धीरे धीरे मैं आगे जाऊंगा. There is no hurry. We do not have to achieve anything today itself. We will have to just understand today, in today's lecture, we just have to understand the concept of holding and subsidiary. आप जितना कंसेप्ट स्ट्रांगली पकड़ोगे, आपका काम आसान होगा आगे जाके. ओके, आज हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लिख लेना है. नहीं, कोई टारगेट नहीं है.
फुर्सत से आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले I will try to calculate how much percentage acquisition H Limited has made in S Limited. What is the percentage of acquisition? 31st March 17 पे, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। H Limited acquired, very important date, right? Very important date. H Limited acquired shares in S Limited on 31st March 17. ये डेट को मैं कहता हूं डेट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट में मैं कहूंगा DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आगे पता चलेगा। सेकंड में अराइव करूंगा हर एक क्वेश्चन में, यही मेरा प्रोसेस होगा, राइट? आई विल आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, which year ending I am going to do the things, I am going to consolidate, which is the date of consolidation, यही मेरा काम होगा। Third thing I will try to do, how much percentage acquisition I have done in S Limited, कितना percentage acquisition, तो यहाँ पे दिया गया है, देखो, I have acquired 75 shares, तो let me check S Limited में total shares कितना था, तो S Limited का शेयर कैपिटल देखो 1000 रुपीज, पर शेयर इज ऑफ ₹10, तो 1000 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, 100 शेयर्स आएगा। 100 शेयर्स में से H लिमिटेड ने कितना एक्वायर किया है, 75 शेयर्स, मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 100 पे 75 माने 75%। तो मैं तुरंत मेरा कैलकुलेशन करूंगा, percentage holding as 75 upon 100 into 100 comes to 75%. Since this is more than 50%, it becomes a holding company. H Limited becomes a holding company of S Limited. ऐसे में अराइव करूंगा। मैंने पहला अराइवेशन क्या किया, डेट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा अराइवेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ कंट्रोल, माने आप कौन से ईयर एंडिंग में बना रहे हो वो हमें ऊपर दिख रहा है, मार्च 17। थर्ड अराइवेशन, हाउ मच परसेंटेज होल्डिंग, तुरंत मैंने ये कैलकुलेट कर लिया 75%, राइट? प्लीज राइट डाउन सो मच, इतना लिखो चलो सारे बच्चे। चलो बच्चों, आर वी डन? ओके 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 ओके, ठीक है, गॉट इट डन, ओके, थैंक यू। चलो, सो मैं समझ गया 75% होल्डिंग हुआ है, मतलब ये होल्डिंग कंपनी हो गया है। इनडायरेक्टली इसका मतलब बच्चों ये है कि मैं 75% का एस लिमिटेड का ओनर हूं, आई एम द ओनर ऑफ एस लिमिटेड। इनडायरेक्टली उसका दूसरा मतलब है कि एस लिमिटेड का 75% ऑफ द नेटवर्थ बिलोंग्स टू मी, आई हैव परचेज्ड
75% ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। सर अब ये नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्थ का मीनिंग होता है ओनरशिप, ओनरशिप और इक्विटी, ओनरशिप और इक्विटी। अब ध्यान से, डू नॉट राइट, पे अटेंशन। नेटवर्थ का मतलब होता है ओनर्स फंड, तो इसका मतलब ये है कि एस लिमिटेड का 75% ओनर फंड का मैं मालिक हूं। जी हाँ, मैं मालिक हूं, मैंने खरीदा है। और आप ऊपर बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट पैसा कितना दिया है, 1000 रुपया दिया है। दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। 1000 रुपए में मैंने 75% स्टेक खरीदा है। ध्यान से देख लो। अब आप बोलोगे सर एच लिमिटेड का कॉलम आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, अरे भाई एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है तो एच लिमिटेड के ही एसेट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा यार? बहुत सिंपल है। सो एच लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 75% स्टेक इन एस लिमिटेड। सो एस लिमिटेड का जो नेटवर्थ है, इक्विटी है, ओनर फंड है, शेयर होल्डर फंड है, जो भी कुछ बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिव वर्ड है, ये आपने एफएम में भी पढ़ा हुआ है, रेशियो एनालिसिस। उसका 75% बिलोंग्स टू मी एंड फॉर दैट आई हैव पेड 1000 रुपीज। कमिंग डाउन, तो लेट मी ट्राई एंड कैलकुलेट, क्या ये सौदा नफे का हुआ कि नुकसान का हुआ? लेट मी ट्राई टू चेक। ओके, H Limited has acquired 75% of net worth of S Limited. Let me try to calculate as on the date of acquisition. Date of acquisition is 31st March 17. ये डेट पे टोटल नेटवर्थ कितना था? लेट मी ट्राई टू चेक। मैं ये दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस आई कैन डू बाय टू वेज, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। ये दोनों अप्रोच से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, आइदर एसेट्स अप्रोच or liabilities approach. By both the approaches I can do the calculation. पहले एसेट अप्रोच देख लेते हैं। तो ओनर का फंड क्या होता है? सारे रियलाइजेबल एसेट्स का टोटल माइनस ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी का टोटल डिडक्ट करूंगा, तो जो बैलेंस बचेगा दैट बिलोंग्स टू द ओनर्स। तो फिक्स्ड एसेट देखो, आप चेक करो, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में जाओ। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखो, आपने नोटबुक में लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट 1000, करंट एसेट 1000 माइनस करंट लायबिलिटी 500, तो ओनर का फंड कितना है? 1500 रुपया। वैसे ही आप लायबिलिटी साइड पे खाली ओनर्स का बैलेंस देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के एंगल से देखो। आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा ना, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर है तो इसमें नहीं है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। चेक करो हाउ मच आर यू गेटिंग? अगेन 1500 रुपया, एक ही होना चाहिए, सीधी बात है, राइट? 1500। इसमें से 75% स्टेक मैंने एक्वायर किया हुआ है बच्चों। चेक करो चेक करो चेक करो। आउट ऑफ दिस 75% स्टेक इज बीइंग acquired. So net worth amount multiply by 75% comes to 1125. मतलब मेरे पास में कितना इक्विटी का स्टेक आया? 1125 का स्टेक आया। उसके सामने मैंने पेमेंट कितना किया है? 1000 का पेमेंट किया है। दैट मीन्स यू गॉट मोर। अमालगमेशन का फंडा याद करो, एनपी माइनस एनए। आपने पेमेंट कम किया है लेकिन मिला ज्यादा, फायदा हो गया, फायदा हो गया। लेकिन ये फायदा आपका रेवेन्यू फायदा नहीं है, दिस फायदा इज कैपिटल फायदा, जिसे मैं ट्रांसफर करता हूं कैपिटल रिजर्व। याद करो, एमालगमेशन का फंडा याद करो। सेम थिंग इज बीइंग अप्लाइड। I have paid 1000 but I got net assets worth 1125. So 125 rupees का आपको फायदा हो गया, and that we call it as cost of control calculation. इसको मैं दोनों वे से प्रेजेंट कर सकता हूं, स्टेटमेंट फॉर्म में और लेजर फॉर्म में। डोंट वरी, आई विल गिव यू टाइम टू राइट, सो डोंट वरी, हैव पेशेंस। पहले सिर्फ समझ लो, मैं फिगर्स आपको वेरीफाई करवा लेता हूं, फिर आई विल गिव यू टू राइट। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट,
you consider as net payment, इसलिए मैंने NP लिखा हुआ है 1000 rupees. Share in net worth you consider as net assets, इसलिए मैंने NA लिखा हुआ है 1125. And the balance I got is my profit because I paid less. Capital reserve. Same thing in the ledger format. Same thing in the ledger format. You get capital reserve, right? So please write down step by step. पहले ऊपर का working लिख लो, ये first number वाला working लिख लो बच्चों, चलो. Please write down this working. Take your time. Please write down. Then I will give you to write the second working. Chalo, I think done this first part. Calculation of net worth. Two ways to calculate the net worth: assets approach and the liabilities approach. In assets approach, we sum up all the assets at realizable value less liabilities at payable values. We get net worth. In liability approach, we add up share capital plus reserve surplus less accumulated losses. We get the same value. तो यहीं पे लायबिलिटी अप्रोच में अगर मैं थोड़ा जूम इन करूंगा तो आपको दिखेगा मैंने रेड पेन से कुछ लिखा हुआ है बच्चों. I have written H Limited 75%, that is holding company limited, and बाजू में 100% और उसके बाजू में MI stands for minority interest 25%. जितना स्टेक मैंने खरीदा है वो 75% है, तो मेरे अलावा जो भी है स्टेक उसे हम कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट. प्लीज राइट डाउन दिस ऑल्सो. तो मैंने शेयर कैपिटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 75-25. पीएनएल बैलेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 75% 25%. लॉसेस कुछ है नहीं, अगर होता तो उसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता. तो नेटवर्थ भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया 75% 25%. चेक करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड. I hope you are understanding the logic behind it. I want to bifurcate holding companies part and rest of the part. Rest of the part I call it as minority interest. वो किसने कितना होल्ड किया है वो जानने का जरूरत नहीं है हमें. चलो अब सेकंड पार्ट लिखो भाई. चलो ये सेकंड पार्ट कॉपी करो along with the ledger. Please copy second part. चलो बच्चों, आर वी डन? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम.
हाँ, ऐसा मत समझना हाँ कि इतना ही चीज होगा, ऐसा मत समझना आप, ठीक है। हाँ, तो आप ये गलती से ऐसा मत समझना कि सर ये लो ये तो हमको समझ में आ गया, हो गया चैप्टर। नहीं, चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। हाँ निखिल बोलो, टेल मी निखिल। निखिल यू आई थिंक रेज्ड हैंड। अच्छा अच्छा, ओके निखिल, या ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मैंने लेजर भी बनाया है, लेजर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। डेबिट साइड पे मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड लिखा हुआ है, राइट, वो मेरा एसेट है, एच लिमिटेड का एसेट है 1000 रुपया। आप चेक करो, ये मैंने 1000 रुपया डेबिट में लिखा, दिस माई इन्वेस्टमेंट, तो डेबिट बैलेंस। मुझे नेटवर्थ कितना मिला वो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, चेक करो। 750 शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन पीएनएल प्रॉफिट 375, टोटल मिला के 125। फिर मैंने बैलेंस किया तो डिफरेंशियल फिगर आई गॉट एज अ प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस आया, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पे बैलेंस आया उसे हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, right? It will be transferred, it represents my capital profit, it will be transferred to capital reserve. The journal entry will be cost of control account debit to capital reserve account, that becomes a journal entry. अगर अगर क्रेडिट साइड पे टोटल आया होता, मतलब डेबिट बैलेंस आया होता, तो उसे मैं कहता गुडविल। In that case, my journal entry would have been goodwill account debit to cost of control account. Yep, as simple as that. Goodwill account debit to cost of control account. Sure. I think done है। थर्ड वर्किंग इज फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ऊपर हम ऑलरेडी कैलकुलेट तो कर चुके हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना, देखो ये लायबिलिटी अप्रोच में मैंने रेड पेन से लिखा है MI, MI माने माइनॉरिटी इंटरेस्ट, राइट। उसका ही मैंने थर्ड वर्किंग बनाया है बच्चों, ये थर्ड वर्किंग भी लिख लो चलो। minority interest which is 25%. What do you mean by minority interest, sir? The stake held by outsiders other than holding company, whatever stake held by outsiders is called as minority interest. Please write down. Share in share capital and share in P&L balance. ऐड कर दिया तो बच गया 375। तो हमारा नेटवर्थ था 1125, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नेटवर्थ है 375, ऐड करेंगे तो टोटल नेटवर्थ हो जाएगा विच इज 1500। सिंपल हिसाब है। चलो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है इन वर्किंग नोट नंबर 1, 2 एंड 3, यू कैन आस्क मी नाउ। वर्किंग नोट नंबर 1 हमने किया कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, वर्किंग नंबर 2 मैंने किया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड वर्किंग नोट नंबर 3 मैंने किया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहां तक इफ एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। I am giving you 30 seconds to respond. Okay, Nikhil has given clear signal. Okay. Drashti clear. Okay. Sahil has given clear. Hiral has given clear. Disha clear. Rimpa clear. Okay. Push Gadoya clear. Okay. Manish clear. Okay. Chalo, rest of the students clear. Hetvi, yeah, Hetvi, tell me.
सर वो जो हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया है या 2018 वाला, Yeah. तो उसके नीचे we have disclosed that we have purchased the shares in 2017, so every time we have to do that. तो अब मैं उसके ऊपर आया नहीं हूँ बेटा, वो मैंने आपको सिर्फ Okay. बनाने के लिए बता दिया ताकि वो काम आपका कंप्लीट हो जाए। अब मैं 17 पे से 18 पे आऊंगा, तब उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? Okay, sir. Yeah. या फिलहाल मैंने एज ऑन द डेट 31 मार्च 17 को क्या कैलकुलेशन होना चाहिए और उसका क्या लॉजिक है वो मैंने अभी तक बताया है आपको। अब मैं 31 मार्च 18 माने नेक्स्ट ईयर में एंटर करूंगा धीरे धीरे। चलो, आई सपोज डन है यहां तक। सो नाउ आई एम गोइंग ऑन द सेकेंड ईयर, दैट इज 31 मार्च 18। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं मेरे बैलेंस शीट्स पे जा रहा हूं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये देखो दोनों बैलेंस शीट अब मेरे पेज पे साथ में दिख रहा है। नाउ आई हैव एंटर्ड द नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 18। सेकेंड बैलेंस शीट मैंने बनाया ना, आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी सिंपल एज पॉसिबल। आई हैव ट्राइड टू कीप इट, मैंने सिर्फ करंट एसेट चेंज किया है एंड पी एंड एल बैलेंस चेंज किया है, देख लो, चेक कर लो आप, बाकी सब सेम टू सेम। I have tried to keep it as simple as possible so that you can understand very properly. मैंने करंट एसेट्स बढ़ा दिया क्योंकि नेचुरली एक साल में कुछ ना कुछ दोनों कंपनी ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया होगा, परचेज सेल वगैरह, ड्यू टू विच उनका करंट एसेट बढ़ा, टू दैट एक्सटेंड उनका प्रॉफिट भी बढ़ा। तो देख लो आप, करंट एसेट्स एंड पी एंड एल को मैंने ऑल्टर किया है, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दे दिया, तो सिंपल एयर हो गया काम। नाउ H Limited has acquired 75 shares in S Limited in the last year, 31st March 17. But now I am at the end of the next year, 31st March 18. How should I analyze the balance sheet? Now that is the question. So now our chapter is starting. Actually, यहाँ तक हमने एक फाउंडेशन बनाया, जो 3 वर्किंग हमने किया, नेटवर्थ वर्किंग, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Now that base we will use for analyzing balance sheet of the current year. So आपने ये बैलेंस शीट ऑलरेडी बना लिया है, ये स्टेटमेंट भी नीचे लिख लिया है। Now my date of acquisition and date of control is important now because both dates are different. In the last balance sheet both dates were same. Now both dates are different. My date of acquisition is March 17, whereas my date of acquisition, I mean date of control, is March 18. Date of control का मतलब है the date on which I am going to prepare the financial statement, date on which I am going to consolidate. Date of consolidation is 31st March 18. Percentage of holding, I have already calculated 75%, so not repeated again and again. Right? Now I will try to calculate the net worth. Do not write, just pay attention. I will try to calculate the net worth. Okay. If you try to calculate the net worth of S Limited, it is 1000 plus 800. देखो मैं liability approach यूज कर रहा हूं, मैंने वर्किंग सेपरेट नहीं लिखा है बिकॉज नाउ यू नो वर्किंग। 1000 plus 800 माने 1800। ध्यान से देखो, 1800 बराबर है टोटल नेटवर्क 1800। अगर इसका मैं 75% करता हूं, ध्यान से देखना, हाँ, 1800 का 75% करता हूं, आप लोग भी करो कैलकुलेटर पे, कितना होएगा? 1350। 1350, yes, that's correct. 1350 is my net worth in my stake net worth. Yes, it will be correct in S Limited. But am I going to compare 1000 with 1350? No, I cannot. क्यों? क्योंकि ये P&L में से 300 रुपया करंट ईयर में हमने कमाया है। लास्ट ईयर तक कितना था? इट वॉज 500 रुपीज।
300 रुपया मैंने करंट ईयर में कमाया है, एंड करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन. ध्यान से बच्चों, I am using the word pre-acquisition and post-acquisition. ये word मैं use कर रहा हूँ. And let me write here. Let me write somewhere so that I can explain you. Okay, मुझे नीचे ही लिखना पड़ेगा after all the workings. Please understand. Do not write. Do not write. Do not write. Total profits as on 31st March 18 is 800 rupees. 800 rupees में से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था? एंड पोस्ट एक्विजिशन कितना है? प्री एक्विजिशन मैंने एक्वायर किया 31 मार्च 17, तब तक का प्रॉफिट कितना था? 500 रुपया था. उसके बाद का प्रॉफिट कितना है? 300 रुपया है. यस. ध्यान से देखो. राइट. I hope you understand this. 500 rupees, you can see the first balance sheet. 500 rupees was a profit of S Limited. And in the current year, it became 800. So there's a balancing figure. This must be in the current year earned. This must be earned in current year. So I'm going ahead. So in the second year, that is March 18 ending, we have seen that the net worth has changed. I will have to bifurcate into the profits, P&L appropriation. मैंने एक छोटा P&L appropriation बनाया है. Opening balance is 500. देखो मैं highlight कर रहा हूँ. Opening balance 500, closing balance 800. तो जरूर current year का profit हुआ होगा 300. चेक करो. ओके, आई एम श्योर आपने ये P&L appropriation बना लिया है, total profits बना लिया है. अब मैं P&L का एनालिसिस करूंगा बच्चों. आई विल डू एनालिसिस फॉर P&L. अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट में मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं. डू नॉट राइट फॉर द टाइम बीइंग. डू नॉट राइट. डू नॉट राइट. आई विल टेल यू व्हेन टू राइट. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में डेबिट साइड पे अमाउंट इनकर्ड जो हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया गया है. ओके. शेयर इन शेयर कैपिटल. शेयर इन शेयर कैपिटल. अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड. सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल टोटल 1000 है. उसमें होल्डिंग का 75% शेयर मतलब 750 ये हो गया है. ये हमने लास्ट वर्किंग में भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखने वाले हैं. वेट, डू नॉट राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द होल चैप्टर इज दिस वर्किंग. ये वर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है. अगर आप ये वर्किंग ध्यान से समझ गए, जो बहुत सिंपल है, एंड इफ यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग ऑन दिस, you are the king of this chapter. ध्यान से समझना, very carefully. Just a minute. ध्यान से समझना. Here I have prepared two columns, pre and post. Very carefully. Opening balance. Opening balance was rupees 500 as on 1st April 17. It was 500. लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग. मैं एनालाइज क्या कर रहा हूं? P&L बैलेंस को एनालाइज कर रहा हूं. ऑल प्रॉफिट्स आर टू बी एनालाइज्ड. ऑफ विच कंपनी? सब्सिडियरी कंपनी. नेचुरली सब्सिडियरी का बैलेंसेस मैं इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं, कंसोलिडेट करने वाला हूं. तो आई हैव टू एनालाइज प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी. मैं सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट्स को एनालाइज कर रहा हूं. ओपनिंग बैलेंस 500 रुपीज ये मुझे मिल गया, तो नेचुरली प्री में जाएगा. क्योंकि सी व्हाट इज प्री? बेसिकली प्री इज व्हाट? बहुत सिंपल टर्म में मैं बात करूं तो समझो
डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे है, DOA यहाँ पे है, लेट अस से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 17। तो इसके आगे का ड्यूरेशन का प्रॉफिट सारा का सारा प्री कहा जाएगा, प्री प्रॉफिट, और इसके बाद का जो भी प्रॉफिट है वो कहा जाएगा पोस्ट प्रॉफिट। बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इसका। So 500 rupees was the P&L balance up to the date of acquisition, मतलब वो उससे पहले ही कमाया होगा मैंने, तो वो प्री में जाएगा। एंड उसके बाद में मैंने कितना कमाया है, दैट इज करंट ईयर में मैंने कितना कमाया है, दैट इज 1 अप्रैल 17 टू 31 मार्च 18, मैंने कितना कमाया है, आई हैव अर्न्ड 300 rupees which we already identified in P&L appropriation account and the other working। पहले मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा, अब सिंपली दोनों का टोटल ले लूंगा, विच आई गॉट एज 500 एंड दिस कॉलम 300। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये दो पार्ट में डिवाइड करना है, होल्डिंग का शेयर और बाहर वालों का शेयर। होल्डिंग का शेयर कितना परसेंटेज है, 75% है, बाहर वालों का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 25% है। आई विल सिंपली कैलकुलेट द प्रोपोर्शन, 500 का 75%, 25%, आप भी साथ साथ में करते रहो। You all also do together। साहिल या बेटा, मैं तो अनम्यूट ही हूं बेटा। ओके, सो 500 का 75% इफ यू कैलकुलेट यू गेट 375 एंड 25% इज 125 एंड 300 का 75% 225 एंड 75। इसको मैं तीन अलग अलग बॉक्स में रखूंगा, ध्यान से समझ लो। सबसे पहला बॉक्स 375 जो मैंने लिखा है, इसका बॉक्स ये प्री प्रॉफिट्स है विच बिलोंग्स टू द होल्डिंग कंपनी। दिस आई विल टेक इट एंड पुट इट इन माय कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, COC में मैंने रख दिया, ये देखो यहाँ पे मैंने रख दिया। इसको मैं एक एरो भी कर रहा हूं, ओके, आई विल पुट एन एरो। ये कहां से कहां पे आया उसका मैं एरो कर रहा हूं ताकि आपको पता चले। ये जो है ओहो, वेरी गुड। चलो जाने दो, इट इज नॉट हैपनिंग ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। सो 375 मैंने यहां से लेके यहां पे लिखा है। नेक्स्ट बॉक्स ध्यान से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट बॉक्स 225 रुपीज, ये पोस्ट प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट मतलब ये मेरा रेवेन्यू इनकम मैं गिनूंगा। दिस विल बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड P&L बैलेंस। कंसोलिडेटेड P&L बैलेंस का यहाँ पे मैंने वर्किंग नहीं बनाया है, पर लेटर ऑन आई विल शो यू द वर्किंग। इट विल गो टू कंसोलिडेटेड P&L, CP&L माने कंसोलिडेटेड P&L। दिस विल गो टू कंसोलिडेटेड P&L। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या जाएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के सामने देखो मैंने एक यूनिक बॉक्स बनाया है, सिंगल बॉक्स। सो बोथ द अमाउंट्स 125 एंड 75, बोथ द अमाउंट्स इन ऑल विल गो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो मैंने नीचे बनाया है। यू कैन चेक हियर 200 रुपीज दोनों का टोटल। ये ऊपर का जो दो बैलेंस था 125 प्लस 75, इसका टोटल मैं बाजू में ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 125 प्लस 75, ऐसे करके आया, राइट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर इन कैपिटल 1000 रुपए का 25%, 250। सो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 450। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यहाँ पे नाउ आई कैन सी व्हाट बैलेंस आई एम गेटिंग इज 125, द सेम फिगर विच आई वॉज गेटिंग इन द लास्ट कैलकुलेशन। किधर गया मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन, यस, सेम फिगर आप चेक करो। Cost of control is always on date of acquisition. So cost of control का जो आंसर आएगा
will not change irrespective of how many years later I calculated. Unless and until आपका परसेंटेज एक्विजिशन चेंज नहीं हुआ है तब तक वो सेम रहेगा. आप देख सकते हो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल विच आई प्रिपेयर्ड इन द सेकंड बैलेंस शीट. देखो मैंने जूम आउट किया, यहाँ पे सेम रहेगा, सेम, एब्सोल्युटली सेम. यू कैन चेक इट. राइट, नाउ यू डू वन थिंग, नाउ स्टार्ट कॉपिंग वन बाय वन वर्किंग. पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिख लो, टेक योर टाइम, मैं आपको टाइम दूंगा, फिर मैं वापस एक बार जूम आउट भी कर लूंगा ताकि आपको सब साथ में भी देखेगा. डोंट वरी. ये सेकंड वाले बैलेंस शीट का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, कॉपी करो. चलो स्टार्ट राइटिंग, टेक योर टाइम. चलो, I think done. First working done, cost of control is done. Second working, analysis of P&L, which is the most important working, guys. This is the most important working, and this particular format which I have framed over here is a unique format, guys. ये फॉर्मेट जितना आप अच्छा याद रखोगे, ग्रास्प करोगे, फ्यूचर में बेनिफिट होगा आपको. इवन एट सीए फाइनल लेवल दिस विल मेक द थिंग्स वेरी सिंपल. हाँ, जैसे हम आगे क्वेश्चंस में प्रोग्रेस करेंगे तब आपको पता चलेगा ये फॉर्मेट का महत्व क्या है. प्लीज राइट डाउन केयरफुली. मैं जूम आउट कर देता हूँ. रेस्ट ऑफ द वर्किंग यू कैन राइट टुगेदर. यू कैन, यू नो दैट यू कैन जूम योर स्क्रीन, राइट. हाँ, नीचे वाला प्रॉफिट वाला तो आपने लिखा हुआ है, सो कोई इश्यू नहीं है. सो प्लीज राइट डाउन सो मच, टेक योर टाइम. चलो, आई थिंक डन. तो मैं और एक बार मैक्सिमम जूम कर लेता हूं, आप चेक कर लो यहां तक आपने लिख लिया है. यू कैन वेरीफाई यू हैव रिटन टिल हियर. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नंबर 1 वर्किंग, नंबर 2 एनालिसिस ऑफ P&L, राइट, नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एंड उसके नीचे मैंने एक सपोर्टिव वर्किंग लिखा हुआ है. दिस मच पार्ट यू हैव डन, राइट.
ठीक है. The most important is the second working. The most important working is the second working. चलो, डन डन डन. फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इससे ज्यादा कंसेप्ट में आज नहीं कर रहा हूं. एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले वेदर वी हैव अंडरस्टूड और नॉट. राइट. आप लोगों को सारे बच्चों को क्वेश्चन शीट मिला हुआ है. इफ नॉट फिजिकल देन आई थिंक द पीडीएफ फॉर्म यू मस्ट हैव गॉट. राइट. उसमें पहला क्वेश्चन चेक करो. चेक द फर्स्ट क्वेश्चन. एवरीबडी सी द फर्स्ट क्वेश्चन. I am reading the question. You all observe it. And ये question पे से I will try to calculate the cost of control and minority interest. मेरा आज सिर्फ यही काम है. Today we just have to understand cost of control and minority interest. Cost of control करने के लिए, find करने के लिए मुझे investment का balance sheet में मिला दिया होगा. And credit side पे I will write down share in share capital, share in profits, that I will write on the credit side, and for that I have to make the second working, which is the most precious working. तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. बैलेंस शीट एज एट 31st December 03. शेयर कैपिटल ₹10 each, sundry creditor, sundry assets, investment 5000 shares. Prepare a consolidated balance sheet. इतना पार्ट आपको दिया गया है. इस पे से आपको कैलकुलेशन करना है that what would be your cost of control, what would be your minority interest. आपको asset side पे investment भी दिया है, how many shares you are holding वो भी दिया हुआ है. Right. I want you to try this first and thereafter I will disclose a solution and we will discuss it. चलो start करो सारे बच्चों. या let it be the rough work, doesn't matter. rough work में भी practice करो, कोई बात नहीं. Start. So the first question we are starting with in the practical questions, balance sheet as at 31st December 03. So I have to do consolidation as on 31st December 03. Check करो. Right. In the absence of information, it is presumed that date of acquisition is also 31st December 03. आप ये क्वेश्चन में नीचे लिख सकते हो. In the absence of specific information. How many number of shares S Limited has? Each share is of 10 rupees. 50,000 divided by 10 करेंगे तो number of shares 5,000. And H Limited is also holding number of shares 5,000. So holding percentage is 100%. ये आपको समझ में आना चाहिए. बच्चों वेरीफाई करो. Holding percentage is 100%. Correct? Now with this, let us prepare the working. Working note number 1, that will be cost of control. Number 2, analysis of profit. Number 3, minority interest. यही order में हम working बनाएंगे. Right? चलो मैं मेरा note share कर रहा हूं now. Check the note. Now you can see on your screen. Very important information in all the questions. 2 dates. Date of acquisition, date of consolidation. Both are same here. This is the first question. Very basic preliminary question. Hence मैंने बहुत simple content लिया हुआ है. Holding percentage. Percentage holding is 100%. Cost of control. Debit side, I will write the amount of investment. देखो 30,000 is the balance sheet. You can see H Limited is holding investment 30,000, 5,000 shares in S Limited. So 30,000 I have written here. Check करो बच्चों.
30,000. Opposite side, share in a net worth. नेट वर्थ में इसके पास में सिर्फ शेयर कैपिटल, देयर इज नो प्रॉफिट लॉस बैलेंस. तो शेयर इन शेयर कैपिटल 100% ऑफ 50,000 comes to 50,000. No share in P&L, nothing. So remained part is capital reserve. मैंने पैसा कम पे किया है, मुझे मिला है ज्यादा. So I will treat it as a capital reserve. Please check करो. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं. सो एनालिसिस ऑफ P&L मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है लेकिन कुछ लिखा नहीं है. यू नीड नॉट प्रिपेयर इट, इजंट इट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि 100% होल्डिंग है. हेलो, इट इज 100% होल्डिंग. सो नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जीरो माइनॉरिटी इंटरेस्ट. Yeah, don't worry, I will show the working. Don't worry, I'll show the working to you. Yes, Hetvi, very good, correct है. परफेक्ट है Hetvi, very good. चेक करो, दोबारा मैं डिस्प्ले कर रहा हूं. वर्किंग नोट नंबर 1. Please write it down, everybody write it down. पहले 4 क्वेश्चन है ना, ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर दिए हुए हैं. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे कैलकुलेट करने का, इसका ही प्रैक्टिस है. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. जी हाँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया लिख के. सेकंड वर्किंग, there is nothing there in second and third working as such. Second and third working, there is nothing else. So second and third working, if you do not want to write, you can just skip it. Second and third working, there is nothing in that. Yeah, Sahil, tell me. Sir, in this, the holding company has a share capital of 1 lakh and the subsidiary company, the smaller company, has that of 50,000. Yeah. So the logic applied here is that since the capital of holding company is more, even though it is more than 50,000, it is only assumed to be 100%. नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया. इधर बिगर कंपनी स्मॉलर कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है. परसेंटेज होल्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं नीचे फॉर्मूला अगेन लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. परसेंटेज होल्डिंग is equal to shares held in subsidiary limited upon total shares in subsidiary limited into 100. यहाँ पे मैंने शेयर्स कितना होल्ड किया है. Each limited is holding how many shares? 5,000 shares. Upon how much total shares of subsidiary company are there? सब्सिडियरी का कैपिटल देखो 50,000 है और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है. तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा. ये मैं थोड़ा डिटेल्ड वर्किंग कर रहा हूं आपके क्वेश्चन के हिसाब से. सो 5,000 शेयर्स अपॉन टोटल शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, वो भी 5,000 है. तो योर आंसर इज 100% होल्डिंग. साहिल, Yes, sir. Got it. like this you have to understand. स्मॉलर कंपनी, बिगर कंपनी, ये वर्ड यूज मत करो, ये कोई मायने नहीं रखता है. फिगर्स के हिसाब से स्मॉलर बिगर नहीं होता है. परसेंटेज स्टेक होल्डिंग के हिसाब से होल्डिंग और सब्सिडियरी होता है. लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Yes, sir. Got the formula. हाँ खुश, अभी दूसरा कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिलहाल नहीं सोचने का. फिलहाल अभी आप सीख रहे हो. आप जितना कंफ्यूजिव बनाओगे इट विल बी hurdleful for you. So for the time being, understand the different questions I am putting here. चलो मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं. आई एम श्योर आप लोगों ने ये परसेंटेज होल्डिंग वाला भी लिख लिया होगा.
अब देखो ये परसेंटेज होल्डिंग हर एक क्वेश्चन में मैं सेपरेट कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, राइट, बिकॉज दिस यू कैन डू ओरली। ओके, सी इंटर लेवल पे ये एक्सपेक्टेड है कि इतना परसेंटेज हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली। ओके, अगेन एंड अगेन दिस आई विल नॉट राइट। आई एम गोइंग on the next question. I'm showing you my PDF. Second question. Okay, I'm reading the question. Balance sheet as at 31st December 03. So my consolidation date of consolidation is December 03. Share capital of rupees 10 each. Profit and loss account, yes. So now I have profit and loss account and also general reserve. जितना भी प्रॉफिट्स का बैलेंस होगा सबको एनालाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, पीएनएल को भी एनालाइज करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को भी एनालाइज करना पड़ेगा। Sundry liabilities, sundry assets, investment 5,000 shares in S Limited. H acquired the shares of S on 31st December 03. Date of acquisition लिखो, आप लोग भी लिखो भाई, पेंसिल से लिखो। क्वेश्चन में अगर आपके पास में फिजिकल शीट है तो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, राइट। चलो शुरू हो जाओ, एवरीबॉडी ट्राई। इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी एनालिसिस, जनरल रिजर्व का भी एनालिसिस। स्टार्ट वर्किंग। Yes, Hetvi, your answer is correct. Very good. Nikhil, answer is correct. Very good. Chalo, I am not disclosing the answer directly like that. Okay. जी हाँ, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। 2 students have given correct answer. Rest of the students